Lesson 13 Statistics Objectives we will cover today. This is from the old textbook of 10th standard, and in this video we are going to cover almost all possible types of questions of statistics. Some are a part of textbook, some are part of practice book, some are created by me, some are asked in the board exam जो और कहीं नहीं मिलेंगे. So stick around, learn, and my recommendation would be keep writing with me. And once you learn a particular technique, you should pause the video, solve it yourself, and then play and see whether you got the correct answer or not. So let's start. To begin with, there is one formula which you should know, which is given in the textbook, and it has many different versions. The versions which I like is Z is equal to 3m minus 2 x bar. This is a relationship. Relationship means equation, which gives the relation between mean, median and mode. Somewhere you will also find a different version. minus 2x लेफ्ट साइड चला जाएगा और z राइट साइड आ जाएगा. एक वर्जन में 3m अकेला होगा, 2x बार प्लस z होगा. बट द मोस्ट यूजफुल, most versatile and used everywhere is this version which you have to by heart. Z is equal to 3m minus 2x bar. Z is equal to 3m minus 2x bar. Z 25. X bar 25. 25 is equal to 3m minus 50. माइनस 50 लेफ्ट साइड जाएगा, ऐड हो जाएगा. 3 विल बी डिवाइडेड ऑन लेफ्ट साइड. 75 अपॉन 3. Therefore the answer median is 25. Second, z minus m 2.5. Now this is not actual value of z or actual value of m, and mean of the data is 20. Find z. Z is equal to 3m minus 2x bar. 3m का मतलब क्या होता है? 3m means m is 3 times m plus m plus m. I can shift one of the m on the left hand side from here. Instead of all 3, I will shift one m. तो यहाँ पे बच जाएंगे 2m minus 2x bar. Why did I do this? Because the value of z minus m is given to me 2.5 is equal to 2m minus 2x bar. X bar value 20 is also given. 2.5 is equal to 2m minus 220s are 40. 40 सामने जाके ऐड हो जाएगा 42.5, and 2 gets divided. m is equal to 42.5 upon 2. Answer is 21.25 median. Third sum, x minus z is 3, x plus z is 45. This is a clear case of elimination. X bar minus z, x bar plus z, plus z minus z cancel. 2x bar is 48, x bar is 24. But have they asked x bar? No. तो मैं आगे करूँगा, z की वैल्यू फाइंड करूँगा. x bar plus z is 45, x bar is 24. 24 सामने माइनस होगा, z is 21. Have they asked 21? No. They have asked median. Now I'll use the general formula. Z is equal to
3m minus 2x bar. Z 21, m don't know, x bar 24. 21 is equal to 3m minus 48. माइनस 48 सामने जाके ऐड हो जाएगा, 69 हो जाएगा. 3 gets divided. Final answer, median is 23. Z24, x bar 18, what is the median? Again, use the formula directly, you will get your answer. M15, x bar 10, to find the value of z, use the formula, you will get your answer. M22, Z16, you have to find x bar, same sum. X bar 21.44, Z 19.13. This sum looks difficult, but it is just that the numbers are in decimal, बाकी कोई फर्क नहीं है. Z is equal to 3m minus 2x bar, Z 19.13. 3m की वैल्यू पता नहीं, 2 x bar is 21.44. 19.13 is 3m minus, this will be 42.88. Now minus 42.88 will get added here, 3m जहाँ पे वही रहेगा, so 42.88 shifts on the left side, 19.13 is already on the left side, 8, 9, 10, 11, 10, 12, 62.01. And to find the final answer, you have to divide it with 3. 62.01 upon 3. 3 2s are 6, 3 zeros are 0, बचा 20, 3 6s are 18, बचा 2, 21, 3 7s are 21, with a dot here because decimal number था. 20.67 is the answer of median. Again same sum, median 26, mean 36, find z. 9 sum is slightly different. Model class of frequency distribution is what? Model class means when you find mode, what is the class? वो थॉर का हथौड़ा बनाते हैं मोड में, तो यहाँ पे क्लास होता है 22, 30, 32, 40, whatever it is. That is called modal class. And थॉर का हथौड़ा हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से बनाते हैं. What is the highest frequency? So frequency is 7, 15, 13, 17, 10. 7, 15, 13, 17, 10. तो you can see this is the highest frequency, तो थोड़ा ऐसे आना चाहिए. And the class is 0 to 10 for 7, 10 to 20 for 15, 20 to 30 for 13, 30 to 40 for 17. Hence the answer is 30 to 40. Modal class. The cumulative frequency of class 20 to 30 is what? Again you have to copy the entire question. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. You have to copy the frequency 7, 15, 13, 17, 10. After this you have to find out the cumulative frequency. 7 copy, plus 15, 22, plus 13, 35, plus 17, 52, plus 10, 62. 20 to 30 का cumulative frequency, 20 to 30 का cumulative frequency answer is 35. Median class of the frequency distribution given in 9. So this was one question.
व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सम क्लास, पांचों पांच का CF पूछ सकते हैं. अब पूछा है मीडियन क्लास. नाउ मीडियन क्लास रिक्वायर्स ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस. तुम्हारे लिए नया नहीं है. ये तो स्टैंडर्ड सम हो गया. क्वेश्चन कॉपी किया, CF कैलकुलेट किया, देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज n. n means sigma f. Sigma f is the total. Total is 62. But cross verification is very necessary. 8 plus 14. Yes, it is 62. तो n by 2 कितना होगा? 31. And the trick is n by 2 को CF में ढूंढना होता है. This is what you have to remember when finding median. 31 CF में कहाँ आता है? यहाँ पे. Therefore the boxes will be 1, 2 और एक ऊपर. Therefore this is the answer. This is called median class. तो 3 बॉक्स बने, तब तक करना था सम. You are not supposed to find the median. You are supposed to find median class, which is this box. But box के लिए n by 2 को CF में ढूंढना पड़ेगा. Answer is C, 22, 30. Change of material, वो 10th की पुरानी टेक्स्ट बुक थी. अब ये एक्स्ट्रा मटेरियल है and this is a repeat question. x minus z3, x bar plus z 45, एलिमिनेशन करके x बार मिल जाएगा, z मिल जाएगा, ये दोनों का सपोर्ट लेके m मिल जाएगा. एंड इट वॉज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम अर्लियर. तो वेरी डिफरेंट सम. पे अटेंशन. ऐसा सम तुमने कभी नहीं देखा होगा. रचना हैड एन एवरेज स्कोर ऑफ 45 फ्रॉम 6 टेस्ट्स. एवरेज मतलब मीन. एवरेज या मीन का सिंबल x बार होता है और फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. So the information says Rachna had an average score of 45 from 6 tests. तो number of tests 6. total मतलब sum of all observations जो नहीं दिया है तो आराम से ढूंढ सकते हैं. 6 gets multiplied with 45. 6 5 are 30. 24 plus 3. 270 is the total marks scored by Rachna in 6 tests. अब टीचर ने क्या किया? टीचर ड्रॉप्ड हर लोएस्ट स्कोर 30. तो 270 टोटल में से उन्होंने कहा कि तेरा लोएस्ट टेस्ट है 30 मार्क्स, उसको मैं नहीं गिनूंगी या नहीं गिनूंगा, -30. एंड देन कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्कोर. तो नया टोटल क्या बन गया? 240. और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सम, अरे सिग्मा एफ नहीं, सिग्मा एक्स, सम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. अब 5 सब्जेक्ट है क्योंकि एक सब्जेक्ट टीचर ने गिना ही नहीं. सो वन थिंग इज फॉर श्योर, इन द आंसर द डिनोमिनेटर शुड बी 5 क्योंकि एक सब्जेक्ट निकाल दिया है. तो अपॉन 6 नहीं आएगा. ऑल्सो 270 माइनस 30 अपॉन 5 किया है हमने और 270 आया था 45 इंटू 6. सो यू सी दिस इज द आंसर. 45 इंटू 6 इज द ओरिजिनल टोटल. -30 क्योंकि एक सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल दिए और 6 का हो गया 5. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द न्यू एवरेज. In a maths test taken by 35 students, N 35,
Average score of 15 girls is 10. Average of girls is equal to total girls मतलब sigma x for girls upon number of girls. तो क्लास में भले 35 है, यहाँ पे गर्ल्स की बात चल रही है. एवरेज स्कोर ऑफ 15 गर्ल्स मतलब N15 इज 10. तो एवरेज इज 10. तो गर्ल्स का टोटल मिल गया. सारी गर्ल्स ने मिल के कितने मार्क्स स्कोर किए? 150. एंड दैट ऑफ 20 बॉयज इज ऑल्सो 10. तो एवरेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल ऑफ द बॉयज अपॉन नंबर ऑफ बॉयज. एवरेज ऑफ बॉयज भी 10 है. उन्होंने कितने स्कोर किए पता नहीं, बट देर आर 10 बॉयज. Therefore, the total score of the boys is 10 tens are 100. Which of the following can be calculated based on the data? इतनी इंफॉर्मेशन है और क्लास टोटल भी पता चल गया. क्लास टोटल 150 गर्ल्स ने स्कोर किए, 100 टोटल बॉयज ने स्कोर किए, 250. क्लास का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 and 10 35. क्लास एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. पूरे क्लास का एवरेज इस पूरे क्लास का टोटल डिवाइडेड बाय पूरे क्लास का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो इट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन. कैन यू नो द हाइएस्ट स्कोर इन द क्लास फ्रॉम दिस डेटा? नो. लोएस्ट स्कोर्स इन द बॉयज? नो. सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ द होल क्लास? yes. We can calculate the sum of the scores of all 35 students, which is 250. We can also calculate the mean of the class. So answer is C. For some data, sigma fi xi, sigma fi, then mean is what? This is the formula of mean. Direct method, 10 standard. और डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं. डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला इज सिग्मा fi xi upon sigma fi 75 upon 12. 3 25s are 3 4s are 25 divided by 4 is 6.25. Answer. To draw cumulative frequency curve, we always take dash on y-axis. Out of syllabus. Cumulative frequency curve ग्राफ होता है और ग्राफ पुराने सिलेबस में थे, अब नहीं है. Z given, mean given, median you can find out. A quick reminder कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Z is equal to 3m minus 2x bar. थियोरेटिकल क्वेश्चन बाय हार्ट कर लो मेथड के साथ. ऐसा एक ही क्वेश्चन आएगा. Z minus m is dash m minus x bar. Okay, there are two types of sums. One is this one. You have to start from the standard formula. Z is equal to 3m minus 2x bar. But you see here Z minus m is given. तो 3m है, उसमें से एक m को मैं शिफ्ट कर दूंगा so that Z minus m is created. तो बचे 2m minus 2x bar. So Z minus m is 2 common, m minus x bar. If you see carefully, answer आ चुका है. Answer is 2 because the format is matching now. And this 2 you can by heart it or understand the method how I created. इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं which will look different but exactly same है. They will ask what is the value of Z minus m upon m minus x bar. The answer is still 2. कुछ नहीं,
ये ब्रैकेट को सामने डिवाइड कर दिया है, तो ये फॉर्मेट बन जाता है, देयरफॉर आंसर रिमेन्स 2। तो ये एक हो गया। हाउ विल यू रिमेंबर दिस? m शिफ्ट्स, 3m में से एक m शिफ्ट हो गया तो 2 आंसर आया। अनदर क्वेश्चन विच दे विल आस्क looks something like this. Again you have to start from z is equal to 3m minus 2x bar. Question में z minus x bar दिया हो। Now problem is minus 2x shift करूँगा plus 2x bar हो जाएगा। I don't want plus 2। minus 2x में से एक x शिफ्ट करूँगा तो भी वो plus x bar ही होगा। मुझे चाहिए माइनस एक्स बार। सो व्हाट आई डू इज आई सबट्रैक्ट एक्स बार ऑन लेफ्ट साइड, आई सबट्रैक्ट एक्स बार ऑन राइट साइड ऑल्सो। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में एक्स बार माइनस करना अलाउड है। इन मैथमेटिक्स somebody says 7 is equal to 7, दिस इज ट्रू। मैं दोनों तरफ एक फिक्स नंबर माइनस कर सकता हूं, आई स्टिल विल गेट इज इक्वल टू। सो माई इक्वल टू इज कॉन्स्टेंट, दोनों तरफ माइनस एक्स बार किया तो यहाँ पे मिला z माइनस एक्स बार, यहाँ पे 3m एंड दिस टू विल कंबाइन माइनस 3x बार, z माइनस एक्स बार 3 कॉमन m माइनस एक्स बार, आंसर इज 3। पहले वाला सम और ये वाला सम एकदम सिमिलर दिखेंगे बट सिमिलर है नहीं। सो बी वेरी केयरफुल, राइट इट डाउन, ट्राई नॉट टू बाय हार्ट इट क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन सीख जाओ। इसी सम का एक दूसरा फॉर्मेट अपॉन में, समटाइम्स दे विल आस्क z माइनस एक्स बार अपॉन m माइनस एक्स बार, आंसर विल स्टिल रिमेन 3। मॉडल क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेम क्वेश्चन है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 के बाजू वाला क्लास इज मॉडल क्लास। इन द फॉर्मूला ऑफ मीन di is equal to what? Formula xi minus a. di is xi minus a. New topic, completely new topic, a long topic. Take a break, drink some water and then start fresh. Mean median mode of raw data. This used to be a part of syllabus of 9th standard which was removed in 2023, but फिर भी साइंस लो के कॉमर्स आगे जाके ये सब कुछ आएगा। So better is to do it and prepare it properly. Even in board exam they will ask this. ये सब क्या है? These are 3 formulas of mean, median, और मीडियन में 2 फॉर्मूलाज है, ऑड का अलग, इवन का अलग, एंड मोड। सो मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ रॉ डेटा। देयर इज अ 30-minute video from the 9th standard syllabus which I have uploaded in the app. I can share it the YouTube link also. वो ज़रूर से देखना, उसमें और ज़्यादा डिटेल में समझाया है दैट रॉ डेटा का मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड करना है। सम्स करते हैं। मीन मीडियन मोड ऑफ रॉ डेटा, देयर आर 3 सम्स। फर्स्ट सम, मीन का फॉर्मूला है sum of observations upon number of observations. 12 plus 14 plus 19 plus 21 plus 25 plus 36 plus 13 divided by number of observations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसका टोटल करोगे तो 140 होगा and 140 upon 7 आंसर इज 20. Second, mean is sum of all observations upon n. This time the observations are in decimal. All you need to be is slightly more careful in adding. बिल्कुल एक लाइन में ऐड करना मत. You have to add it the way which you learnt in 2nd standard. Number of observations 5.
टोटल 50 आएगा, and 50 upon 5 आंसर इज 10. रियली टोटल 50 आता है कि नहीं? 12.05, 12.5, 12.55, 11.95, 0.95, टोटल 50. बट कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन बना देंगे, x लगा दिया है, does not make any difference. Observation 1, 2, 3, 4, 4 ऑब्जर्वेशन है, हमें मीन फाइंड करना है. फॉर्मूला रिमेन सेम, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. x plus 2 plus 2x minus 8 plus x minus 3 plus 25 minus 4x divided by how many observations? 4. The good thing is x 2x x मतलब 4x हो गया, and 4x and minus 4x gets cancelled, बचे सिर्फ numbers 2 minus 8 minus 3 plus 25 upon 4. 16 upon 4, answer is 4. So finding the mean of raw data is really simple. Total करो, divide by number of observations. अब mode find करते हैं. Mode is my favorite. It takes 1 second to find the mode of any data. ट्रिक याद रहनी चाहिए. द ट्रिक इज मोड इज सच एन ऑब्जर्वेशन विच गेट्स रिपीटेड हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है वो मोड है, और यहाँ पे आंसर इज 5 बिकॉज इट इज़ रिपीटेड 7 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7, बाकी दूसरा कोई भी नंबर काउंट करोगे it is coming less number of times. Therefore mode is 5. Second question में दो मोड, वन 1.05 एक बार 2 बार, 1.55 एक बार 2 बार, तो दोनों आंसर लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. और अगर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, you will write no mode. Median. Now carefully observe, median has 2 formulas. अगर n odd है तो अलग फॉर्मूला, अगर n even है तो अलग फॉर्मूला. यहाँ पे n लिखा है. So let's see how to apply this formula. But I'll teach you the shortcut. तुमको लॉन्ग कट सीखना है तो तुम दूसरा वीडियो देख सकते हो और देखना ही चाहिए. That is called hard work. I'll teach you shortcut. The shortcut to find median is super simple and fun. वैसे भी ऑब्जेक्टिव है, मेथड के मार्क्स नहीं है. The biggest, most important thing you have to remember in median is ascending order. All the observations should be in ascending order. Only then you can do the magic trick and find the median. पहला सम देखो, 14, 19, 20, 19, 17, 12, 13, 15. सबसे छोटा नंबर 12, फिर 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19, 20, 17, 19, 19, 20. First, last, cancel. First, last, cancel. First, last, cancel. First, last, cancel. अगर बीच में एक सिंगल नंबर बनता है, that is the median. यहाँ पे आंसर 15 लिखा है. Let us check we did some mistake or not. 12, 13, 14, 15 करेक्ट है. उससे बड़ा नंबर 17,
19, 19, 20. Everything is correct. This answer is a misprint. आंसर आएगा 70. फिर से एक बार, to find the median you have to, most important, arrange it in ascending order. सबसे छोटू नंबर 18, 41, 43, 57. 81, 87, 91, 96. Ascending order, and then start the shortcut method. First and last cancel, first and last cancel, first and last cancel. अगर मैं ये दो को भी कैंसिल कर दूंगा बीच में कुछ बचेगा नहीं. तो if single number is not there, you have to add the both and then divide by 2. 138 divided by 2, 69 is the median. Last sum, इसमें x आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ध्यान से देखना, x प्लस 5 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 6. इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? x में ऐड करोगे तो बड़ा नंबर होगा, x में माइनस करोगे तो छोटा नंबर होगा. सबसे छोटा नंबर इज x माइनस 6 बिकॉज सबसे ज़्यादा माइनस हुआ. फिर x माइनस 1, फिर x, ओके, x माइनस 6 दो बार है, सो x माइनस 6 एक बार, x माइनस 6 दो बार, x माइनस 1, फिर x प्लस 5, फिर x प्लस 7. फर्स्ट लास्ट, मीडियन इज x माइनस 1. यहाँ पे मिसप्रिंट है, -1 आएगा. मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे 10th स्टैंडर्ड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मीन मीडियन मोड में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती है. दो सम मीन, दो सम मीडियम, दो सम मोड के देखते हैं, वेयर सम डेटा इज मिसिंग. मीन ऑफ द डेटा इज 43, ये दिया हुआ है. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज. मीन इज 43, ऐसे पढ़ना है क्वेश्चन को. और डेटा कहाँ है? ये रहा. फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीन गिवन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस में तुमको ये पूरे ऑब्जर्वेशंस का टोटल करना है. लेट्स कैलकुलेट द टोटल क्विकली. 40, 45, 41, 46, 46 अगेन, 43, 44 और x भी है साथ में, 305 plus x. This is the total of all the observations. How many observations are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very easily you can calculate the answer. 8 सामने multiply होगा, 344 is 305 plus x. 305 सामने माइनस होगा, 39 is the answer. सम ओवर, बाजू में आंसर इसीलिए लिखे हैं, 42. समथिंग इज रॉन्ग, लेट्स चेक वंस अगेन. This shows the importance of checking the answer. Always ask for the answer. 40, 45, 41, 46, 46 again, 43, 44, 305 is okay. Mean is 43. Number of observations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 43 into 8, 344 minus 305, 39 is the correct answer. 11th sum, same to same.
मीन इज 25, मीन की जगह पे 25। फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, 10, 40, 13, 35, 36, 31, 14 and x 179 plus x. Number of observations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 into 25 200, 179 सामने माइनस होगा, x is 21। चलो इस बार तो करेक्ट है, x is 21। So that is about missing data in mean. अब missing data in median, ये उससे भी easy है। They have already arranged in ascending order. They have already arranged in ascending order for us. तो एक झंझट कम हो गई। और साथ में दिया है median is 10, median is 10, ये उनका दिया हुआ मीडियन है। बट इफ आई कैलकुलेट माई मीडियन बाय माई मेथड ऑफ फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, मेरे हिसाब से मीडियन होना चाहिए x प्लस 8, उनके हिसाब से मीडियन है 10। मीडियन तो मीडियन होता है, सेम होता है, x प्लस 8 इज इक्वल टू 10, x मिल गया 2। फाइंड x, x is 2। फिर से एक बार 13 सम, मीडियन ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर डेटा इज 21, उनका दिया हुआ मीडियन 21, बट मेरे हिसाब से मीडियन होना चाहिए फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट। ये दो ऑब्जर्वेशन बच गए, इन दोनों को कैंसिल कर दूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सो मेरे हिसाब से मीडियन शुड बी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकेंड ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, मतलब 2x प्लस 9 अपॉन 2। मीडियन मीडियन होता है, उनके हिसाब से 21, मेरे हिसाब से ये। I will compare both and find the value of x. (42) 9 माइनस होगा, x is 33 अपॉन 2, डेसिमल में भी आ सकता है, नॉट अ बिग इशू। 15, 16.5, 42, आंसर दिया है 6, that is wrong, so please don't look at these answers. Mode, mode of the given data is 1, मतलब 1 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या है? 1 एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 1 2 3 बार, बट मोड तो 1 है, तो 1 ज़्यादा बार रिपीट होना चाहिए, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए ताकि वो 4 बार हो जाए तो ही वो मोड बनेगा। दैट्स द लॉजिक, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सम्स। मोड इज 14, 14 एक बार, 14 2 बार, 14 3 बार, बट ध्यान से देखोगे तो 12 एक बार, 12 2 बार, 12 3 बार, बट मोड तो 14 है, तो x को 14 बनना ही पड़ेगा।
तब जाके वो ज़्यादा टाइम रिपीट होगा एंड इट विल बिकम द मोड हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू. Next topic. Again, take a break, go drink some water, start fresh. Ungrouped data का main median mode. There is a separate video where I have taught everything in detail. 10th के टेक्स्ट बुक के अंदर भी अनग्रुप्ड के एक एक दो सम्स है, सो यू मस्ट लर्न दिस प्रॉपरली. लेट्स डू अनग्रुप्ड डेटा मेन मीडियन मोड. सिंगल सम, वी विल फाइंड ऑल थ्री वन बाय वन. So starting with ungrouped data, finding mean, median and mode. First we will find mean of two or three sums. Once you copy the question, marks of students, कितने students के कितने marks आए, ये theme है और theme से statistics को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. It is all about class and frequency. Ungrouped में class is the xi, you don't have to calculate your xi and frequency is given. The first step to find out mean in ungrouped frequency distribution table is multiplication of xi fi. 3 1s are 3, 4 3s are 12, 5 2s are 10, 6 5s are 30, 7 6 are 42. Then you have to create a total sigma xi fi या fi xi जो बुलाओ वो. 3 plus 12 15, 25, 55, 57, 97. Also you have to find out sum of frequency sigma f 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. And then you have to apply the formula of mean for ungrouped distribution table. It's sigma fi xi xi fi upon sigma fi. 97 upon 17. Just to save time, we will calculate it here. 5.70 is the mean. Actually 5.705. In statistics, every answer you have to take it up to 3 decimal places, then round off. तो 5 को इग्नोर करना और 5 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा. 5.71 is the answer of mean of this table. फिर से एक बार find mean, median and mode. Next sum. इसमें नंबर ऑफ पेटल्स है, फ्लावर की पेटल्स होती है और वैसे कितने फ्लावर्स है, तो एक पेटल वाले कितने फ्लावर्स है, 2 पेटल वाले एक्सेट्रा. बट डेटा डज नॉट मैटर, इट्स अबाउट क्लास एंड फ्रीक्वेंसी. अनग्रुप में क्लास खुद xi है, फ्रीक्वेंसी fi है. यू हैव टू कैलकुलेट xi fi. 1 2s are 2, 2 4s are 8, 3 2s are 6, 5 2s are 10, 8 2s are 16. Then you have to find out sigma xi fi 10, 20, 30, 42 and frequency 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And then apply the formula of mean is sigma xi fi upon sigma fi. 42 upon 12, 21 upon 6, 7 upon 2, 3.5 is the answer. एक और सम, हाइट ऑफ शुगर केन. कितनी हाइट है, 120, 125, 130, 135, 140 और वैसे हाइट वाले कितने शुगर केन है. दैट इज द थीम. क्लास एंड फ्रीक्वेंसी. xi fi लिखा नहीं हो तो खुद लिखना है. एंड वी स्टार्ट बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ. 125 are 600, 125 4s are 500, 135s are 650, 135 2s are 270 and 147s are 0,
980। फिर टोटल क्रिएट करना है 600, 500, 650, सॉरी 600, 500, 650, 270, 980, 3000 इज द टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल 9 + 5 14 + 2 16 + 7 23। Therefore mean is equal to sigma fi xi upon sigma fi 3000 upon 23. Calculate and that's your answer. 130.434. 130.434. 4 is a small number, तो राउंड ऑफ करते समय कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर इज 130.43. So 3 sums we did and found out mean. अब यही 3 सम करेंगे और फाइंड करेंगे मीडियन। मीडियन के लिए फ्रेश टेबल बनाना ज़रूरी है। So pause the video and make the table and then continue. Finding median. Now this is very different, so pay attention. First step, sum of frequency. 1 + 3 4 5 6 12 5 17. तो सिग्मा एफ मतलब n और n is 17, n is odd. मीडियन का ऑड का फॉर्मूला है n + 1 द होल डिवाइड बाय 2 एथ ऑब्जर्वेशन, मतलब 17 + 1 by 2 एथ ऑब्जर्वेशन, 17 + 1 18 by 2 9th ऑब्जर्वेशन। अब 9 आंसर नहीं है, 9th ऑब्जर्वेशन आंसर है। 9th ऑब्जर्वेशन ढूंढने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट CF। 1 + 3 4 + 2 6 + 5 11 + 6 17। 9th ऑब्जर्वेशन 11 के अंदर आएगा, तो यहां है 9th ऑब्जर्वेशन, ये है आंसर। दिस इज द 9th ऑब्जर्वेशन। सीधा 6 लिखने का, मीडियन ऑफ द डेटा इज 6। Once again, for the next sum, again pause the video, copy the question and follow the sequence. First step, sum of frequency. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So sum of frequency is n is 12, but this time n 12 का मतलब है it is even, और अगर वो even है तो मीडियन का फॉर्मूला है n by 2 एथ, n by 2 plus 1 एथ the whole divide by 2. n by 2, n 12 है तो 12 by 2 6th, ये भी 6 हो जाएगा, प्लस 1 7th by 2. Now this is not 6 + 7 by 2, wrong. This is 6th observation plus 7th observation by 2, और 6th और 7th observation कहाँ है? 6th और 7th ऑब्जर्वेशन कहाँ है वो CF में से पता चलेगा। 2 + 4 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12। 6th ऑब्जर्वेशन इसमें है तो वो ऑब्जर्वेशन है 2। 7th ऑब्जर्वेशन इसमें आएगा, मतलब वो 3 है, एंड 2 + 3 by 2
Final answer is 2.5. One last time, finding median, sugar cane वाला सम रिपीट करते हैं. First step, sigma f. (23). Sigma f is equal to n is equal to 23, which means n is equal to odd, which means median का odd formula यूज करना पड़ेगा, मतलब n plus 1/2 th observation, मतलब 23 plus 1/2 th observation. 12th observation is your answer. But 12th observation है किधर, मिलेगा कैसे? CF में से 5 plus 4 9 plus 5 14 plus 2 16 plus 7 23. 12th observation is inside 14, therefore it is 130. That's the median. And going back again for the same three sums, mean हो गया, median हो गया, mode is my favorite. केयरफुली पे अटेंशन, कुछ नहीं लिखोगे तो भी याद रह जाएगा. मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाजू वाला नंबर. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 6, मोड इज इक्वल टू 7. आंसर. नेक्स्ट सम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 4, तो मोड इज इक्वल टू 2, ये वाला नंबर. लास्ट सम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 7, उसके बाजू में 140 है, mode is equal to 140. So mode is the fastest and easiest in all. Sorry. अनग्रुप्ड में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, और ये 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में एक सम है. सो क्वेश्चन को स्टेट फॉर्मेट में कॉपी किया एंड द मीन इज गिवन एज 8.2. Class means xi, you don't have to calculate it. Frequency is fi. fi xi calculate करते हैं. 4 8 जा 7 8 जा 9 into f, 11 4 जा 12 2 जा 13 3 जा 15 1 जा. ये मीन में होता है. मैंने मीन का प्रोसेस किया बिकॉज मीन 8.2 इज गिवन. नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट सम ऑफ xi fi. टू सेव टाइम, 32 56 44 24 39 15 210 प्लस ये 9f भी तो है. 9f विल नॉट गेट मर्ज्ड, इट विल रिमेन सेपरेट, प्लस 9f. सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 8 18 प्लस 8 26 प्लस f. If I have to calculate mean, I will use the formula which I know. मेरे हिसाब से मीन होगा 210 प्लस 9f अपॉन 26 प्लस f. बट दे आर सेइंग द मीन इज 8.2, उन्होंने दिया हुआ है. तो उनका मीन और मेरा मीन आमने सामने रखो, यू विल इजीली फाइंड f. 8.2 means 82 upon 10 means 41 upon 5, वो मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँ. इज इक्वल टू 210 प्लस 9f अपॉन 26 प्लस f. क्रॉस मल्टीप्लाई, 41 gets multiplied with 26 plus f and 5 gets multiplied with 210 plus 9f. 41 into 26,
130 1300 ना 41 into 26 1066 plus 41F 5 into 210 plus 5 9s are 45 41F यहाँ माइनस होगा, बचेगा 4F 1050 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बचेगा 16 is equal to 4F, missing frequency F is equal to 4. So you have to literally calculate your mean and compare with their mean. और तुम्हारे मीन की जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगी भले मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो. Once again, the given mean is 4. Sum is here. I'll start by calculating xi fi. 3 4s are 5 5s are 7 7s are 4 10s are 1 5s are 2 into f and 3 1s are. फिर दो टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी and sigma fi xi. 12 plus 25 plus 49 plus 40 plus 5 plus 3 134 plus 2f. 4 plus 5 9 plus 7 16 plus 10 26 plus 5 31 plus 1 32 plus f. तो मेरे हिसाब से मीन होना चाहिए 134 plus 2f upon 32 plus f. But they are saying the mean of this data is 4. ये रहा दिया हुआ है, बस सामने 4 रख दो. So our mean and their mean will be compared. 32 plus f सामने multiply होगा. So 134 plus 2f is 128 plus 4f. 2f यहाँ माइनस होगा, 128 यहाँ माइनस होगा, f is equal to 3. That's your answer, that's your method. Missing frequency in median. दिस इज़ वेरी रेयर, ये कभी नहीं आया है बट फिर भी कर रहे हैं तो सीख लो. मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीडियन. मीडियन इज गिवन 9. आई विल ट्राई टू फाइंड द मीडियन. कैसे? Okay, these are omitted from the syllabus now because इसका method पूरा completely अलग है. So we will not do this. It's not necessary as of now. तो missing frequency median की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. Change of topic. Till now we have covered in this single video 3 topics. Z is equal to 3m minus 2x bar वाले objectives. Raw data का मीन मीडियन मोड जो 9th स्टैंडर्ड में था बट ओमिट हो गया. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन मीडियन मोड जो 9th में था अगेन ओमिट हो गया. इसके अंदर भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने की है. नाउ कम्स द 4th टॉपिक. इफ वन ऑब्जर्वेशन इज टेकन बाय मिस्टेक. बहुत फेमस सम्स हैं, बोर्ड में कभी कभी आ जाते हैं, प्रीलिम के पेपर्स में बहुत आएंगे. मीन ऑफ डेटा कंटेनिंग 10 ऑब्जर्वेशंस. n 10. मीन इज 12.5. मीन इज 12.5. तो ये दो में से सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आराम से कैलकुलेट हो सकता है बिकॉज यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ मीन. Mean is equal to
sum of all observations upon number of observations. 12.5 is equal to sum of all observations upon 10. टोटल 125 है वो पता चल गया, बट ये 125 में एक गड़बड़ की है. वन ऑब्जर्वेशन वॉज टेकन एज 10 इंस्टेड ऑफ 5. इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन वॉज टेकन एज 10 इंस्टेड ऑफ 5. 10 गलत है, 5 लेना चाहिए था. तो पहले कौन सा गलत है कौन सा सही लेना चाहिए था वो डिसाइड कर लो और अपने टोटल को करेक्ट करो. रिमूव द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन. 10 नहीं लेना था उसको हटाओ. क्या लेना चाहिए था 5, उसको ऐड करो, तुमको नया टोटल मिल जाएगा. ये करेक्ट टोटल है. और फिर करेक्ट मीन फाइंड करो. करेक्ट टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द करेक्ट मीन इज 12. दिस इज हाउ यू सॉल्व सच सम्स. फिर से एक बार. डेटा कंटेनिंग 15 ऑब्जर्वेशंस, n 15. मीन इज 140, x bar 140. I can find out what is the total of all the observations by using the formula. 140 is sigma xi upon 15. 140 into 15. 2100 is the total of all the observations. But ये टोटल गलत है because one observation was taken as 120, जो रॉन्ग था. लेना चाहिए था 160. तो अपने टोटल को करेक्ट करो. 2100 में से गलत ऑब्जर्वेशन को माइनस, सही ऑब्जर्वेशन को प्लस. 2140 is the real total. Correct sum of observation is 2140. Divide by n, number of observations 15 है तो नया मीन मिल जाएगा. Correct mean is 2140 upon 15, 142.6666. 3 बार. Last round off, 142.67 is the answer. लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी. 9 वॉज टेकन इंस्टेड ऑफ 12. 9 ले लिया भूल से, लेना चाहिए था 12. कैलकुलेटिंग मीन विच वॉज 20. मीन वॉज 20 फॉर हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस 10. n 10. मीन वॉज 20 और गड़बड़ नंबर्स ये रहे. Mean is equal to sum of observations upon n. 20 is equal to sum of observations upon 10. 200 is the grand total. But ये टोटल गलत है, उसको करेक्ट करो. रिमूव द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन. -9. Add the correct observation. Plus 12. 203 is the correct total. तो करेक्ट मीन कितना? करेक्ट टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. करेक्ट मीन इज 20.3. गीता स्कोर्ड एवरेज 34 मार्क्स फॉर 7 सब्जेक्ट्स. एवरेज 34, मीन 34 फॉर 7 सब्जेक्ट्स n 7. तो सिग्मा xi क्या होगा? 7 4s are 28. 21 plus 2, 238 is her total. टीचर ड्रॉप्ड हर लोएस्ट मार्क्स. टीचर ने बोला तेरे लोएस्ट मार्क्स को उड़ा दे, माइनस कर दे, तो नया टोटल आ गया 210. दिस इज सिग्मा xi. और एक सब्जेक्ट हटा दो तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए 6. तो न्यू एवरेज is new total divided by new number of subjects.
6 3 ज़ा 18 कैरी 30 आंसर 35। उसकी एवरेज चेंज हो गई, पहले 34 थी अब 35 हो गई। Raj scored average 12.5 for 5 subjects. Average એટલે mean 12.5. Number of subjects 5. तो सिग्मा एक्स आई फॉर्मूला से ढूंढ लोगे, बेसिकली इट्स मल्टीप्लिकेशन 62.5 राज का टोटल। टीचर ने बोला तेरे हाईएस्ट मार्क्स निकाल दे, टीचर कैंसल्ड इज हाईएस्ट मार्क्स, तो टोटल में से 11.5 निकल गए, बचा सिर्फ 51। नई एवरेज क्या है? न्यू एवरेज इज न्यू टोटल अपॉन न्यू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। 51 इज द न्यू टोटल एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 की जगह हो गए 4। 12.75 इज द आंसर, 51/4। Boys and girls, slight change in topic. 2 groups, boys, girls, 2 averages. Average of 20 boys was 21. Average of 20 boys and 20. Average 21. So sigma xi by using the simple formula will be 420. And 30 girls की एवरेज 30 गर्ल्स एवरेज 30, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 900। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास, तो पूरे क्लास का टोटल क्या है, पूरे क्लास ने मिलके कितने मार्क्स जमा किए, 420 प्लस 900, और पूरे क्लास में बच्चे कितने हैं, 20 बॉयज़ 30 गर्ल्स 50। 1320 अपॉन 50, 00 कट, 132 अपॉन 5, 26.4 is the new average of the class। फिर से एक बार, एवरेज हाइट ऑफ बॉयज 172, average height of girls 168. Find the total average of the class with overall 50 students. The class has only 10 boys, तो number of boys मिल गए यहाँ से 10, अपने आप number of girls मिल गई 40 because there are total 50 students। boys की total height कितनी, 1720। गर्ल्स का टोटल कितना, 168 इंटू 40, 6720। तो पूरे क्लास का ग्रैंड टोटल मीन क्या है, बॉयज़ का टोटल प्लस गर्ल्स का टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। 8440 upon 50, 00 cut, 844 upon 5, 168.8 is the answer, average of the whole class। Bunty gave 5 exams of maths and science each। 5 एग्जाम मैथ्स नहीं, 5 एग्जाम साइंस नहीं, 5 मैथ्स 5 साइंस। His average score for maths was 97 and average score for science was 95। तो मैथ्स में कितने मार्क्स स्कोर किए, 5 इंटू 97, 485। साइंस में कितने स्कोर किए, 475। तो ओवरऑल एवरेज क्या बैठेगा, ये दोनों का टोटल 485 प्लस 475 अपॉन टोटल 5 and 5, 10 subjects, 10 exams, which is 0, 1, 6,
960 upon 10. Average grand score is 96. राजा तोता सॉन्ग्स. चेंज ऑफ टॉपिक, टेक अ ब्रेक, ड्रिंक वाटर. बस अभी जल्दी ख़त्म होने वाला है, सो डोंट वरी. राजा तोता सम्स भी बहुत इजी है. दे कैन बी सॉल्व ओरली एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन अ सेकेंड. इसको बंद कर देते हैं. सम्स के वैसे कोई नाम नहीं है. अब राजा तोता क्या है? एक बहुत पुरानी स्टूपिड सी कहानी है कि एक राजा को टेंशन था कि मैं अगर वॉर लड़ने गया और मैं मर गया तो मेरा क्या होगा. आई डोंट वॉन्ट टू डाई. तो राजा ने एक ऋषि मुनि को बोला कि कुछ करो. तो ऋषि मुनि ने राजा की जान एक तोते में डाल दी. नाउ द किंग यूज टू कंफर्टेबली गो फॉर वॉर बिकॉज ही विल नॉट डाई, बिकॉज उसकी जान तोते के अंदर है. बट भूल से तोता उसके सन के हाथ में आ गया और सन तोते के साथ खेलने लगा. अब सन जो तोते को करेगा वो राजा को होगा. सन तोते को चिली खिलाएगा, तीखा राजा को लगेगा. सन तोते को थप्पड़ मारेगा, दर्द राजा को होगा. तोते की जान राजा में, राजा की जान तोते में, ऐसा कुछ है. मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसमें स्टैटिस्टिक्स कहाँ है? एक तरफ होते हैं ऑब्जर्वेशंस. मैथ्स में कितने आए? 30, साइंस में 32, इंग्लिश में 28, एसएस में 31 और गुजराती में 20. हर सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आते हैं, बट उसका एवरेज कुछ तो होता है ना. एवरेज मार्क्स इज से 29. अगर तुम हर एक सब्जेक्ट में 2 मार्क बढ़ा दो तो नई एवरेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. एवरेज में भी +2 हो जाएगा ऑटोमेटिक. अगर तुम हर एक स्कोर को डबल कर दो तो एवरेज चेंज हो जाएगी, बट न्यू एवरेज डज नॉट नीड टू बी कैलकुलेटेड. न्यू एवरेज डायरेक्ट इंटू 2 हो जाएगी ऑफ ओल्ड एवरेज. सम देखो अपने आप समझ में आ जाएगा. एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज मल्टीप्लाइड बाय 3, देन डिवाइडेड बाय 2. फाइंड द न्यू मीन, क्योंकि तुम डेटा चेंज करोगे तो मीन चेंज हो जाएगा. बट पुराना मीन क्या था? 5. तो करंट मीन 5 है. तुमने हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई 3 किया तो मीन को भी मल्टीप्लाई 3 ही होना पड़ेगा. और फिर डिवाइड बाय 2 किया, ये रहा. तो 5 3 15/2. द न्यू मीन इज 7.5. उसके लिए डेटा की भी ज़रूरत नहीं. इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज एडेड विथ 4 आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 2, मतलब पहले 2 मल्टीप्लाई करना है फिर एडेड विथ 4. सो इंटू 2 + 4 सारे ऑब्जर्वेशन में किया. न्यू मीन क्या है? उसके लिए पुराना मीन चाहिए. पुराना मीन भी वही होगा. सो ओल्ड मीन इंटू 2 + 4, 24 + 4. आंसर शुड बी 28. यू कैन इग्नोर दिस आंसर, मैंने उल्टा पुल्टा किया. So every observation is added with 4 after multiplying with 2. 28 is the new mean. What is the total of difference of observations and mean? ये बाय हार्ट कर लो, ये आगे जाके हो जाएगा, अभी ज़रूरत नहीं है. वो राजा तोता का पार्ट नहीं. Miscellaneous sums are, देख लेते हैं, शायद एक आध कहीं भूल से आ जाए. सिग्मा मतलब सम 450. ये सिग्मा xi है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. एंड इन स्टैटिस्टिक्स n लिखने की एक स्पेसिफिक स्टाइल होती है. n इज रिटन एट द टॉप. तो ऐसा होता है, सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशंस जहाँ पे I starts from 1 and goes up to 25 is 800. तो इसका मतलब ये है that there are 25 observations. n जो होता है वो ऊपर लिखते हैं. xi में i1 है, मतलब x 1 2 3 25 तक ऑब्जर्वेशंस, और उन सबका टोटल 800 है. सो टू इंफॉर्मेशन यू कैन गेट टुगेदर. सम कितना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं. सो फ्रॉम दिस you can say the sum is 450, but how many observations are there? 10. I is equal to 1 to 10. Therefore mean कैसे ढूंढेंगे? Very easy. Mean is equal to sum of all observations upon number of observations. Sum is 450, number of observation is 10, answer is 45. ये रहा. नेक्स्ट सम में 153 क्या है? सिग्मा, सिग्मा एक्स आई. सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 153, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये ऊपर का नंबर है 15. तो मीन कितना? 153 अपॉन 15, 10.2. 38 is a slight twist. इसमें क्या पूछा है? सिग्मा एक्स आई पूछा है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन मार्क. n is visible 10 and mean of the data is 12 दिया हुआ है. So all you have to do is put the numbers in the formula. Mean 12, sum of observations पता नहीं, number of observation 10 यहाँ से पकड़ में आ जाता है. Therefore sum of observation is 10 into 12, 120. आंसर. उसके बाद वाला भी सेम तरीके से करोगे, आंसर हो जाएगा. 5450 is the correct answer. 40th, find the number of observation of data if mean is 14. ये भी कुछ नहीं है. 14th question says very clearly mean is 14, sum of observations is 157. तो कितने ऑब्जर्वेशन है? तो अप्लाई द सेम फॉर्मूला, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. 14 is equal to 157 upon n. n on left side, 14 on right side. 14 ones are 14, carry 1 17. 157 नहीं, यहाँ पे 154 होना चाहिए था शायद. हाँ 154 होना चाहिए था. सो 154 upon 14 is 11. There are 11 observations. (41, 42, 43 is omit. You don't require to learn that right now. Maths practice book objectives. This video is long enough, so I am stopping it here. Maths practice book objectives कोई छोटी चीज़ नहीं है. There are a lot of objectives and therefore there will be a separate lecture created for solving the objectives of maths practice book, जो ऐसा लग रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे. Okay, bye, take care, see you soon.